Okay, good morning, students. First of all, I want to introduce myself. This is Om Singh Yadav from Bareilly, and today we will discuss about the topic grammar. Okay, in grammar, first of all, we will discuss about the topic tenses. Okay, tenses. As we all know that the word tense denotes time. Tense denotes time. Time is further classified into three subcategories. The first one is present tense. The time which is going on is known as present tense, and the time which has been passed, that is known as past tense, and the tense, the time which is coming in future, is known as future tense. Okay. Now we will discuss the first topic under the tense, and that is verb. That is the verb. A verb plays a very important role in framing and constructing the sentences. That's why today we will discuss what is verb. A verb is an action word. Okay, that always denotes an action. Okay, the verb is further classified into three subcategories. The first category is finite verb. F-I-N-I-T-I, finite verb. The first one is finite verb, and the second one is non-finite verb. Non-finite verb. Finite verb, non-finite verb. And the third one is auxiliary verb. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Students, each and every verb has its own importance. Without finite verb, nobody can frame out any sentence in English. हम बिना इस finite verb के कोई भी sentence को frame out नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो first verb है finite, second है हमारी non-finite और third है हमारी auxiliary. ये तीनों ही verb का अपना एक importance है. तो first of all we will discuss finite verb. Finite verb is further classified into three subcategories. The first one is transitive verb. पहली जो verb है उसको हम transitive verb बोलते हैं. Transitive verb को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया. इसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं. सकर्मक मीन्स कर्म सहित, सकर्मक मीन्स सहित, कर्मक मीन्स कर्म के. ऐसी वर्ब जिसको अपना अर्थ की पूर्ति करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है. द वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इट्स सेंस, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब. द सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया. इसको हम बोलते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया. ओके. द थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब. दैट इज नोन एज संयोजक क्रिया. हिंदी में इसको हम बोलते हैं संयोजक क्रिया. Okay, as we will discuss the second verb, intransitive. Intransitive verb means the verb that doesn't require any object to complete its meaning, or we can say this verb never requires an object. Without object, it can produce the complete meaning. Example. For example, beside the example, he eats food. Okay, without the word food, nobody can clarify the meaning of eat. That's why eat is a transitive verb. It requires an object. While this verb, the child beeps. Here this verb never requires an object. अब हिंदी में देखते हैं इसको. जैसे यहाँ पर मैंने कहा he eats food, वह खाना खाता है. अब अगर मैं खाने को छिपा लूं तो ये होगा वह खाता है. तो क्वेश्चन आएगा क्या. तो क्या को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? फूड से. तो इस
सेंटेंस का मीनिंग तभी कंप्लीट होगा जब इसमें ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर चाइल्ड पीप्स, बच्चा रोता है। द काइट, द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो ऐसी वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो हमारी इंट्रांजिटिव कैटेगरी में आती है, और जिनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांजिटिव की कैटेगरी में आती है। एंड द थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब। द थर्ड वन इज लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इज यूज्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल, if we will say he is my brother, he is my brother, मैंने एक एग्जांपल लिया, he is, he means वह, is है, my brother मेरा भाई। तो he तो है सेंटेंस का सब्जेक्ट, my brother है सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट, ये है सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट। और ये एज बचा, ये एज को हम लोग जनरली जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के नाम से, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पर ये जो इज है, इज की स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इज जो है हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं आएगा? इसी का दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने लिखा ही इज, TEACHING, he is teaching English, he is teaching English। यहाँ पर देखिए ही के साथ आया इज, इसकी स्पेलिंग वही है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये है हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को असिस्ट करने के लिए जो वर्ब आती है उसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जब मेन वर्ब आएगी तो इसी को हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और जब मेन वर्ब नहीं आएगी, कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट होगा, दोनों के बीच में जब आएगी तो इसी को हम लिंकिंग वर्ब, जिसे संयोजक क्रिया कहते हैं। ओके, ये रहा। अब हम बात करते हैं टेंसेस की। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स की। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज जीरेंड। इसको पहले को हम बोलते हैं जीरेंड, सेकंड इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, और थर्ड को हम बोलते हैं जीरेंड, जीरेंड, इन्फिनेटिव, तीसरे को बोलते हैं पार्टिसिपल, तीसरे को बोलते हैं बेटा पार्टिसिपल। तो देखिए जीरेंड कब बनता है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर लेते हैं तो हमारा जीरेंड बन जाता है। लेकिन आईएनजी किस रूप में? इस रूप में नहीं जैसे यहाँ पे टीचिंग लिखा हुआ है, नो, ये इस रूप में होगा जैसे हम लिखें यहाँ पर TEACHING, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन, टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। तो यानी कि टीच में आईएनजी लगाया हमने और इसको एक सब्जेक्ट नाउन की तरह हमने यूज कर लिया, सब्जेक्ट की तरह यूज किया। तो ये टीच में बना टीचिंग, और टीचिंग के बाद हमने लिया एज। तो टीचिंग हियर इन दिस सेंटेंस द वर्ड टीचिंग इज वर्किंग जस्ट लाइक अ नाउन। तो ये यहाँ पर जीरेंड कहलाएगा, जीरेंडियल नाउन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? जब हम इन्फिनेटिव में किसी वर्ब से पहले टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे मैं कहूं टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, हार्मफुल फॉर हेल्थ, HEALTH, हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब देखिए बेटा यहां हमने क्या लिया? स्मोक, स्मोक इज अ वर्ब, यहाँ पर स्मोक वर्ब है, लेकिन इससे पहले हमने क्या लिया? टू। तो टू जो है वो इन्फिनेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सेंटेंस बना टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इन्फिनेटिव को दर्शाता है, ये इन्फिनेटिव है। अब बात करते हैं पार्टिसिपल की। तो तीसरा बनता है हमारा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज, जैसे कि आप लोग जानते होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, जैसा कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, आपने पढ़ा होगा वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी है। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, ये देखिए वर्ब की बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ी है आपने। वर्ब की पहली अवस्था होती है जिसे हम बोलते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा गो, सेकंड फॉर्म होती है इसकी, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया गो की सेकंड फॉर्म वेंट। एक होता है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमने लिख दिया गॉन, थर्ड फॉर्म हमने लिखा गॉन। तो बेटा इधर देखिए, तो जो गो है ये है हमारी फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड है, इस सेकंड फॉर्म को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट
पार्टिसिपल। ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल हमारे टोटल 3 होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। इसीलिए वर्ब की 3 फॉर्म होती है, चौथी फॉर्म नहीं होती। जो चौथी फॉर्म बोलते हैं वो चौथी फॉर्म हम जीरेंड को बोलते हैं, जो कि हम एक मेन वर्ब के रूप में, जैसे हमने यहाँ पर टीचिंग यूज किया है वैसे यूज करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे टेंसेस की। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं टेंसेस, और मैं आपको बहुत शॉर्ट में टेंसेस सिखाऊंगा। एक ही दिन में सारे टेंसेस आ जाएंगे और समझ में आ जाएगा कैसे हम टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखते रहिए बड़े ध्यान से और समझते रहिएगा इसको। अब हम देखते हैं टेंसेस कितनी जल्दी हम एक ही दिन में एक साथ 8 टेंसेस को कवर करेंगे एक साथ में। तीसरा पार्ट हमारा बचा है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का एक अपना रोल है, अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर हम डालते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, AUXILLARY, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, तो बेटा ऑक्सिलरी वर्ब को आज समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, auxiliary verb is further classified into 3 categories. The first one is verb to do. पहली verb होती है verb to do. The second one is verb to be. Second verb हमारी verb to be होती है। Third होती है हमारी verb to have. Verb to have होती है। तो हम देख लेते हैं यहाँ से कैसे हमने सारे टेंसेस को यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, कैसे हम एक ही दिन में समझ लेंगे। तो बेटा वर्ब में जो टू डू है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। इसको देखिए, वर्ब टू डू, तो देखिए इसका पहला जो फॉर्म होता है वो होता है डू, और सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं डज। डू और डज प्लस इसके साथ जो भी वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो देखिए डू और डज, डज में डू में डिफरेंस है सिर्फ ईएस का। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे ईएस क्यों आ गया। तो देखिए जैसे हम नाउन्स में, नाउन्स आपने देखे होंगे जैसे लिखा है APPLE, ये है एप्पल। एप्पल मींस एनी एप्पल, एक सिंगुलर एप्पल की बात हो रही है यहाँ। जब हम एक एप्पल को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम चेंज करते हैं बेटा APPLE और प्लस हम लगाते हैं उसमें S, तो ये बनता है एप्पल्स। ऐसे ही अगर हमारे पास वर्ड आ जाता है MANGO, मैंगो, तो मैंगो को जब एक से ज्यादा मैंगो हमें बनाने हो तो हम मैंगो में ऐड करते हैं ES। मतलब when our noun is singular and we wants to make it plural, we always use s or es in the base form of the noun. Noun में हम s और es ऐड करते हैं। In the same way, when we have any kind of verb and each and every form of verb in first form always